So today my topic is that the power of resurrection. तो आज हम बात कर रहे हैं पुनरुत्थान की शक्ति की। There is a power, because of power God rose again. उस शक्ति की वजह से ही यीशु मसीह In Good Friday we are celebrating the Good Friday Jesus died for us. जैसे हम गुड फ्राइडे मनाते हैं, गुड फ्राइडे को हम ये बात करते हैं कि यीशु मसीह क्रूस पे मरे, Jesus come into this world वो इस दुनिया में आए for us, हमारे, for you, आपके लिए, for our sin. हमारे If पापों के लिए। Jesus is not coming into this अगर world, यीशु मसीह दुनिया में नहीं today आते there is no Christianity. तो आज बसीरत कहाँ होती? Today our sins are not forgiven. हमारे पापों की क्षमा भी नहीं होती, Today we didn't get हमें salvation. उद्धार भी नहीं मिलता, Today we didn't get eternal हमें life. अनंत जीवन भी But नहीं मिलता। Jesus come लेकिन यीशु आया, and he come into this इस world दुनिया में आया, and he do the great and marvelous things. अच्छे अच्छे बड़े काम करे, That's why he saw us the way और इसलिए उन्होंने रास्ता दिखाया how to go to heaven. कि कैसे स्वर्ग He जाना। saw us the way उन्होंने रास्ता क्या to दिखाया conquer the death. कि मृत्यु पर जय कैसे पानी है। God giving us the to conquer the death. परमेश्वर ने हमें मृत्यु पर जय पाने के लिए रास्ता खोला। And so he was dead on Friday. वो शुक्रवार को मरे And people think the enemy, the Satan, the Lucifer thought that Jesus will not rise और again. जो लूसीफर जो शैतान है उसे लगा ये तो मर गया, जिंदा थोड़ी होगा And there is no salvation. और लोगों को उद्धार भी नहीं मिल Oh, you पाएगा। guru to mar gaya. So Satan will come either. So Satan happy that he wants Jesus Christ to be dead. तो शैतान बड़ा खुश था, अरे यीशु मसीह को मरना था, मर गया, बढ़िया। And then all the people go to hell. और अब तो सारे लोग नरक जाएंगे। So when Jesus was crucified, जब यीशु मसीह क्रूस पे मरा, Satan was clapping his hand. शैतान खुश होता, तालियां I बजा got रहा the था। victory. अरे मुझे सफलता मिल Now गई। nobody will go to अब heaven. उद्धार करता तो मर गया, No कोई salvation. उद्धार नहीं है, Your God is dead. तुम्हारा प्रभु तो मर गया, Nobody will not save you. कोई तुम्हें नहीं बचाएगा, Nobody will not deliver you. कोई तुम्हें छुटकारा नहीं दे Nobody will सकता, not heal कोई you. तुम्हें चंगाई नहीं दे You सकता। are अब rejected. तो तुम्हें नकार दिया, You, because of your sin, you are going to go to तुम्हारे hell. पापों की वजह से तुम सब नरक ही जाओगे। Satan was so happy. शैतान बहुत खुश था, He thought that he was win the वो victory. कहता अरे मुझे सफलता मिल गई। And now, और अब after 3 days, 3 दिन के बाद क्या it's हुआ? early in the morning, सुबह के समय 23 years back. 2023 साल पहले, This is not a make-up story. ये कहानी नहीं है, बनगढ़ंत कहानी, Real ये story. सच्ची कहानी है। History. इतिहास में लिखा है। I went and see the tomb. पास्ता के लिए मैंने जाके वो 2017 June. 2017 62 जून में गई थी। Jesus tomb was there. यीशु मसीह की कब्र आज भी The खाली tomb है, was empty. वो खाली है। So now the third day, the early in the morning on Sunday, तो तीसरे दिन सुबह रविवार के दिन Jesus rose again. यीशु मसीह जिंदा He conquered the death. उन्होंने मृत्यु पर जय पाई Satan was crying. और शैतान रो रहा है, Oh, how when he rose अरे again. वो कैसे जिंदा हो गया, And he rose again. वो कैसे जिंदा हो He गया, saved the people. उन्हें लोगों को बचा He लिया, delivered the people. छुटकारे मिलेंगे, And he secured the अब people. लोगों को बचा लिया Now he's जाएगा, giving अब salvation. उद्धार मिलेगा। Now the Satan cried. अब शैतान रोता है, Oh, I lost my battle. अरे मैंने अपनी हार मान गया, I thought that I win the battle. मुझे तो लगा था मैंने जीत लिया है, I thought that I got the मुझे salvation. लगा था कि उद्धार नहीं मिलेगा किसी को। But now लेकिन अब Satan lost his battle. शैतान ने अपनी लड़ाई खो दी And he was no way. और अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है। So that is how Jesus. Now that is why early in the morning, तो सुबह के समय the Friday then he was buried. शुक्रवार के दिन उन्हें कब्र में डाल दिया गया Because the Sunday has a Sabbath day. और रविवार को जो सबत का दिन मनाया जाता We है, had told them that Sunday the Passover celebration is तो there. उस समय वहाँ पे फसह का पर्व था। So as soon as Jesus was dead, nobody killed Jesus. यीशु मसीह को किसी ने मारा नहीं, Jesus was arrested, यीशु मसीह को पकड़ा गया, beaten up. बहुत पिटाई हुई, He only gave up his life to us. उन्होंने अपनी सांसें छोड़ के खुद अपना जीवन दिया, No Roman soldier. किसी ने उनकी सांसें नहीं No ली, one. किसी ने नहीं। Jesus said, "Elia lama sabachthani," and he gave up his spirit. पर यीशु मसीह ने कहा एलोई एलोई लमा सबक्तनी, And Jesus said, "Finish." और उन्होंने बोला अब सब कुछ खत्म हो गया। Finish means he has finished the sin. उन्होंने बोला मैंने पापों को खत्म कर He दिया, has finished the death. मैंने मृत्यु पर जय पा He ली, has finished our sickness. हमारी बीमारी खत्म He कर has दी, finished the work of the Satan. शैतान के कामों को नष्ट कर दिया। And now Jesus died and he has finished all the work of the और Satan. यीशु मसीह ने क्रूस पे मरकर शैतान के हर एक कार्य काम को नष्ट कर And he दिया giving the और हमें victory. सफलता दी। And Jesus gave up his और life. यीशु ने फिर अपनी सांसों को छोड़ And he दिया was buried. और उनको दफना दिया गया। Now in the Jewish culture, यहूदी समाज में when they buried, जब किसी को दफनाया जाता we है used to put, after burial we put mud. तो मिट्टी डालते हैं लोग। But in Jew culture, not like that. यहूदी कल्चर में, संस्कृति में ऐसा नहीं Egypt होता, culture also not like that. मिस्र में भी ऐसा नहीं होता। They used to make the, a grave. वो पत्थर से Often they make एक it. गुफा बनाते हैं Then they make a hole. और एक छेद बनाते हैं And they make they used to make a polish in the tombs. और जो Bridge and all they put nicely. और उनको पत्थर लगा के अच्छे सुंदर होके सजाते
और जो कॉफिन होता है, जिस डब्बे में मृत शरीर को रखा जाता है, उसे अंदर उस गुफा में रख देते हैं। Then they close the hole. और फिर वो ढक्कन को बंद For कर देते हैं। example, this is the coffin. जैसे This is the grave. जैसे मान लीजिए ये एक कब्र है, Then this is the door. ये दरवाजा है, They put the coffin here. वो दरवाजा खोल के इसके Then अंदर they रखेंगे, will close the door फिर stone दरवाजा बंद with a big करके stone. एक बड़े पत्थर से उसको बंद करेंगे। So they used to keep like this. This is the culture. ये उनकी संस्कृति है। Till now they do that. आज भी वो ऐसे ही करते हैं। So now they make a hole and they put the coffin. तो ऐसे उन्होंने भी पत्थर में से एक गुफा बनाई और उसके अंदर रखी, उसके बाद Then वहाँ पर पत्थर after रख 3 days, तो 3 दिन के बाद they used to come and anoint again the body. तो लोग क्या करते थे, क्योंकि वो शरीर सड़ने वाला होता है, तो लोग आके उस शरीर को अभिषेक करते हैं, तेल लगाते हैं। So now we see the book of Mark. मरकुस की किताब में हम देखते Now the हैं Mary, the Martha, and the Salome, the three women, जो 3 औरतें थी, मरियम मगदलीनी, मरियम और सलोमी, early in the morning, सुबह सुबह के समय, the first week, the 7th day, not Sunday, जब सब्त का दिन आया, रविवार का दिन, सुबह सुबह early morning, वो लोग सुबह, let us go and anoint तो Jesus. चलो यीशु मसीह के शरीर को ना हम जाके तेल लगाते हैं। चलो So they took the उन्होंने anointing oil, अभिषेक तेल लिया, and they were on the way. तो वो रास्ते में जा But रहे when थे। we come, वो कहते हैं जब जाएंगे, who will open the big अरे वो door? पत्थर तो इतना बड़ा है, कौन हिलाएगा, तेल कैसे लगाएंगे हम? And they were discussing. वो बात करते करते चल रही थी, And when they come there, और जब वहाँ पहुंची, and Jesus was putting in the garden of Gethsemane, जो गत्समनी के बाग में उनको रखा गया था, and in the mountainside, पहाड़ों में his tomb was there. उनकी गुफा वहाँ So पर है। early in the morning, तो सुबह के समय early morning is what? How many people used to wake up early morning? कितने लोग जल्दी सुबह उठते हैं? 4 o'clock, 4 बजे, 3 o'clock. 3 बजे, से हम लोग 4 o'clock उठाता है ना? What वहाँ is तक it? अंधेरा होता है। ना अंधेरा नहीं होता, रोशनी धीरे थोड़ी रोशनी होती है। मैं तो रोज उठा के बाहर लाके ऐसे खिलाता है, रोज दिखते हैं। तो no, when you go out early in the morning 4 o'clock, the bride would coming slowly. अगर आप slowly. सुबह 4 बजे निकलेंगे तो देखिए हल्की हल्की रोशनी आनी शुरू हो जाती है। So now the lady they want to anoint Jesus' तो body. जो औरतें थी यीशु मसीह के शरीर को अभिषेक करना So चाह they रही wake थी, up early in the तो morning उसको जल्दी उठी, before the traffic, बिना जब ट्रैफिक भी नहीं होगा, before the people moving here and जब there. भीड़ आती है उससे पहले ही, In the very silent time, बिल्कुल शांति के समय ना, only the chicken will go like that, you know. So only early in the morning, तो सुबह के समय and the Surya will there will be so many sounds of छोटी छोटी God, आवाजें आती है, चिड़िया की, पक्षियों की, and some people are sleeping. और कुछ तो सो रहे होते हैं। That early morning, तो उस सुबह के समय that this woman, जब ये औरत, let us go before people see अरे us. लोग हमें देखे इससे पहले जल्दी जाके यीशु मसीह की बॉडी को तेल लगा Because देते when हैं, people see, they are afraid the people. क्योंकि उन लोगों से डर लग रहा था, Because they going to the Jesus tomb. क्योंकि वो यीशु मसीह की कब्र में जा रही And है। when we read in the Matthew chapter, 28, अगर हम मत्ती 28 में पढ़ेंगे, and when Jesus was buried, जब यीशु मसीह कब्र में डाला गया, there is Jesus told that I will rise again. और यीशु मसीह ने मरने से पहले कहते था कि मैं तीसरे दिन जिंदा हो जाऊंगा। So when Jesus died, जब यीशु को दफना दिया, the Jews, the priest, the priest people, तो याजक जो वहाँ के पंडित लोग थे, they come to the Pilate. वो वहाँ के जो पिलातुस एक राजा था, उसके Pilate पास is आए, a governor. एक गवर्नर था। And what I'm telling you, Matthew 28. पास्टर को मत्ती 28 से कहानी बता रही है। And so now they come to that, they asking the priest asked Jesus tomb to be God. तो उन्होंने जो पंडित लोग थे उन्होंने बोला, अरे इस बंदे ने ना मरने से पहले बोला है कि मैं जिंदा हो जाऊंगा, इसकी ना गुफा को अच्छे से बंद करना, मैं जिंदा ना हो जाए। And then also they asking the body guy, guards over the tomb और 3 days. इसके मरने के बाद ना इसके मरे शरीर को भी जरा गार्ड बिठा दो वहाँ पे, कहीं ऐसा ना हो इसकी बॉडी उठा के लोग ले जाए। Otherwise disciple will take away the ये body. तो चेले के करेंगे, बॉडी उठा ले जाएगी और कहेंगे जिंदा हो गया, जिंदा हो गया। So now that is why the Pilate said okay, and he sent the soldier. तो पिलातुस ने बोला ठीक है काम करो, मैं गार्ड भेज देता हूँ, सैनिक लोग खड़े रहेंगे रखवाली के So लिए। now there is so many soldiers. तो वहाँ बहुत सारे सैनिक लोग थे, Guard over the tomb उस गुफा के आसपास खड़े थे, for 3 days. 3 दिन तक खड़े Because रहे थे, Jesus said that I will rise again after 3 days. क्योंकि यीशु मसीह ने मरने से पहले ही कहता कि मैं तीसरे दिन जिंदा हो जाऊंगा। So the priests they know that Jesus will rise again. तो पंडितों को लगा भाई कुछ तो हो सकता है इसके शरीर के साथ। So they are asking the Pilate, the government, to give a guard over. तो पिलातुस से बोलकर उन्होंने कुछ सैनिकों को यीशु मसीह गुफा के बाहर खड़ा कर दिया। So they guards over. वो गार्ड कर रहे थे। That's why the women were very afraid. तो औरतों को डर लग रहा था, When they come, the guard will not allow us to अरे go. जब जाएंगे तो गार्ड तो हमें अंदर नहीं घुसने देगा। And they were talking. वो बात कर रही थी। And when they come and nearby, जब वो वहाँ पर आई, the tomb was open, big open. पहले से ही गुफा का पत्थर तो साइड Then में we था। said, oh, who opened the tomb? मुझे अरे ये गुफा कैसे खुल गई? And they let us go inside. फिर चलो चलो अंदर And the जाते हैं। soldier were not और here.
people who sent them, governor, they run back to city. जब पिलातुस को बताया तो पिलातुस के पास भाग के पहुंचे, अरे इसका शरीर तो वहाँ नहीं है। And then now they come, the Mary and the Martha and the Salome, they come. और जब वो तीन औरतें उस गुफा में पहुंची And they were not there. और यीशु मसीह का शरीर They were वहाँ नहीं था, afraid. वो डर गई। Oh, who took away the Jesus अरे body? यीशु मसीह का शरीर कौन ले गया? Oh, they were, then they were looking for Jesus. वो यीशु को ढूंढ रही थी। Then the angel appeared. तो परमेश्वर का स्वर्गदूत We have दिखाई read in दिया। the Mark हमने मरकुस में पढ़ा, that there is an angel appeared. एक स्वर्गदूत आया। Why are you looking for the Almighty? Your God has risen. तो उसने क्या बोला? अरे तुम मरे हुओं के बीच में जिंदा को क्यों ढूंढ रही है? God has rose. यीशु मसीह जिंदा हो गया है। You go and tell the disciples. जाओ उसके चेलों को बता दो, You will meet in Galilee. वो गलीली में उनसे मिलने वाला है। Jesus gone. यीशु मसीह चले गए। They run back वो औरतें डरती डरती भाग के and गई they told to the और disciples, चेलों को बताया, Jesus has rose अरे यीशु again. मसीह जिंदा हो गया है। Then disciples didn't believe him. चेलों ने बोला, ना कि लेजी लोग पागल बोलते हैं। ये तो रोते रोते कुछ भी सोच रही है वो लड़कियां। लोग प्रभु का सुन के ना इमेजिनेशन मेकअप उसी हो रही है। कल्पनाएं कर रही है, रो रो के उनको याद आ रही होगी प्रभु की। They were not, the people were not believing. लोगों ने विश्वास नहीं किया। Then Jesus appeared to Mary, the person who is the cast of the demon. यीशु मसीह ने मरियम से इसमें 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी, उसको फिर से दिखाई दी। Then all the people that Jesus meet them. यीशु मसीह और लोगों से भी मिले। You will see the book of John last chapter. अब यूहन्ना का सुसमाचार आखिरी अध्याय पढ़ेंगे तब। Then people will talk about Jesus' tomb was open. और लोग बात करते हैं, अरे उसकी गुफा खुली Now है। the people, where is Jesus' body? अरे यीशु का शरीर फिर गया कहाँ जब गुफा खुली है? Then Matthew chapter 28 verse 36 you will see मत्ती 26 में आप देखेंगे, the soldier जो सैनिक लोग थे they run to the priest. वो पंडित के पास पहुंचे। They told them, अरे पता है Jesus was rose again. यीशु से जिंदा हो गया, And we see our eyes. हमने अपनी आंखों से देखा है। Now what we do? अब करें क्या? Then priest told them, तो पंडित लोगों ने क्या they बोला? give money. उन्होंने उन्हें पैसा खिलाया They told them, और कहा, don't tell this अब story. किसी और को मत बताना कि वो जिंदा हो Don't गया tell at है। all. किसी को मत बताना। And you say that when Jesus was sleeping, the disciples will come and steal away the और ये लोगों को बोलना कि जब यीशु मसीह कब्र के अंदर पड़े थे ना, रात को उसके चेले आए, उसके शरीर को चुपचाप लेकर चले गए। So you tell lie ये झूठ बोल दे रहा सबको, to the world. दुनिया को, They give money, a lot और of उनको money, बहुत सारा घूस खिला दिया and they took. और उन्होंने ले लिया They went. और वो चले गए। Now the Jewish people believe और that. आज भी आप देखें, इजराइल के बहुत सारे यहूदी लोग यही विश्वास करते हैं। So now Jesus was, and then Jesus, now the disciples were gathering, और जब चेले साथ में आए and then Jesus was appeared. और जब चेले साथ में बैठे बात कर रहे थे कि यीशु को देखा, यीशु को Peace be with you देखा, all. तो यीशु मसीह आया, कहा तुम्हारे साथ शांति। Then people were scared, disciples were scared. लोग तो डर गए, भूत आ गया, भूत आ गया, भूत आ गया। Then Jesus said, no, यीशु ने कहा नहीं, I told you, मैंने तुम्हें कहा तो I था will rose कि again. मैं जिंदा You होऊंगा। see in the nail, that आप देखो nail, मेरे हाथों में छेद है, and you are putting in my मेरे पैरों में भी hand. देखो छेद है, Come and see. आओ ना देखो। And Jesus saw to them. यीशु मसीह ने दिखाया। And Jesus was raised again, the same body, यीशु मसीह जैसे शरीर में थे वैसे शरीर में ही not जिंदा the हो। spirit. कोई आत्मा में नहीं। And so that is why today we are celebrating the Easter Sunday. और इसलिए आज हम एस्तर रविवार को मना रहे हैं। Many religion leaders died. बहुत सारे धार्मिक गुरु मर गए, They never rose again. वो जिंदा नहीं हुए। Till today their tombs are closed. आज भी उनकी गुफाएं बंद हैं, But our God rose again. लेकिन हमारा परमेश्वर जिंदा हो He गया। lived among the disciples. वो हमारे चेलों के साथ रहता था। 40 days on the earth. 40 दिन तक पुनरुत्थान के बाद भी वो धरती पे घूमते रहे, He was living them. उन लोगों के साथ रहे। After 40 days, 40 दिन के बाद He took the disciples. उन्होंने चेलों को लिया, He went to the mountain, पहाड़ पे गए, the Mount of Olives, माउंट ऑलिव पर, and He told them, और उनसे कहा, go into the world, अब तुम लोग दुनिया में जाओ, preach the gospel सुसमाचार बांटो, about salvation. उद्धार के बारे में बताओ। Whoever believes they will get जो भी विश्वास salvation. करेगा वो उद्धार पाएगा। And I also give you the power, the authority. और जो अधिकार और सामर्थ्य मुझ में था वो सब तुम्हें You देगा। will cast out the demons. तुम भी शैतानों को You will निकालोगे, heal the तुम भी बीमारों को sickness. ठीक You will करोगे, raise the तुम dead. भी मरों को जिंदा Because करोगे, I have conquered the dead. क्योंकि मैंने मृत्यु पर जय पाई है। And He was giving the commission. और उन्होंने ये उनको आज्ञा दी, He was giving the commandment. उनको ये आज्ञा दे दी। And He was commanded. In the Matthew chapter 28 verse 18 and 19. मत्ती 28 के 18 और 19 में लिखा है। Matthew 28, 18. 18 में God said, I have given all the power and authority. परमेश्वर कह रहे हैं, मैंने तुम्हें सारा अधिकार और सामर्थ्य दे दिया है। Authority what? अधिकार क्या? Authority to conquer the Satan. शैतान पे जय पाने की, Authority to conquer the sickness. बीमारी पे जय पाने की, Authority to conquer the disease. बीमारियों पे जय पाने की। And you go and
preach the gospel. तुम जाओ दुनिया में And whoever believes, और जो भी विश्वास करे baptize them. उसको बपतिस्मा दो। And then also he said, और उन्होंने कहा and whoever not believe, जो विश्वास नहीं करेगा they will condemn. वो दोषी ठहराया जाएगा। See, those who not believe in Jesus, जो लोग यीशु में विश्वास नहीं करते हैं they are already condemned. उनको नकार दिया गया है। People who didn't believe in Jesus, जो लोग यीशु में विश्वास नहीं करते प्रभु के लिए लेना देना नहीं है, already condemned. So now whoever believe, तो जो भी विश्वास करेगा they have salvation. उसको उद्धार मिलेगा। God never force to people. परमेश्वर कभी जबरदस्ती नहीं करते हैं। God never told you come to Jesus. परमेश्वर कभी नहीं कहते यीशु में आओ, यीशु में God आओ। said, I am the way, the truth. परमेश्वर कहते मैं सत्य मार्ग और जीवन हूँ। And you believe, you get तो salvation. विश्वास करोगे तो उद्धार पाओगे। If you didn't believe, नहीं विश्वास you are करोगे condemned. तो नरक में You जाओगे। go to hell. नरक में जाओगे। So whoever believes, तो जो भी विश्वास they करेगा have the उसको salvation. उद्धार मिलेगा। That is why Jesus is not dead anymore. इसलिए अब यीशु मरा हुआ नहीं है, Jesus is here. वो जिंदा है, Jesus is with you. हमारे साथ है। Many God and many goddesses died, बहुत सारे देवी देवता मर गए but they are not rose पर again. जिंदा नहीं हुए थे दोबारा। And Jesus rose लेकिन again. यीशु मसीह He की never तरह died वो again. दोबारा नहीं मरा। See, many people rose again. बहुत सारे लोग They rose. Jesus time also Lazarus. यीशु मसीह जब जिंदा, यीशु मसीह के समय में उन्होंने बहुत मरे हुओं को जिंदा किया, But those people, so they died again. लेकिन वो लोग भी दोबारा मरे थे But they didn't rose again. पर दोबारा जिंदा नहीं हुए। They're waiting for the last day. वो सब इंतजार कर रहे हैं अंतिम दिन का। But Jesus died. लेकिन यीशु मसीह He मरे rose again. और जिंदा हुए, He never died. दोबारा नहीं मरे Now he went up to और heaven. अब वो स्वर्ग में है। Jesus said in the John chapter 26 यूहन्ना 26 से प्रभु ने and John chapter 14. और 14 में He said, I will go and place and prepare for you. और मैं अब जाके तुम्हारे लिए जगह तैयार कर रहा हूँ And at the place that I am, you also going to be with me. और जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ तुम भी मेरे साथ होगे। So now God is going to the heaven and prepare a place for us. अब परमेश्वर स्वर्ग में है, यीशु मसीह स्वर्ग में हमारे लिए जगह तैयार कर। He was preparing you for your eternity to eternity to वो stay. आपके रहने के लिए अनंत काल का जीवन तैयार And कर। Jesus said, I am coming soon. और यीशु मसीह ने ये भी कहा मैं जा रहा हूँ लेकिन मैं जल्दी आऊँगा। Those who believe, जो भी विश्वास I am करेगा going to come and take the place that I am. You also going to be और there. अब मैं जहाँ जा रहा हूँ जब मैं आऊँगा दोबारा तो उन्हें भी लेकर जाऊँगा जो मुझ पर विश्वास That is why करेंगे। today we are believing और इसलिए हम विश्वास कर रहे हैं because Jesus is coming क्योंकि soon यीशु मसीह जल्दी आ रहे to हैं। take us the place हमें that भी heaven there is no sickness, हमें भी स्वर्ग में ले जाने के जहाँ पर कोई बीमारी heaven नहीं there है, is no death, स्वर्ग में कोई मृत्यु heaven नहीं, there is no pain. स्वर्ग में कोई दर्द भी नहीं है। We are going to spend Jesus Christ with eternity to हम eternity. अनंत काल तक यीशु के साथ जीवन But the बिताएंगे। people who didn't believe, लेकिन जो लोग विश्वास नहीं they are करेंगे going to spend eternity to वो hell. अनंत काल तक नरक की आग में जलेंगे। In hell there is no death. नरक में मौत नहीं होती है, You will be alive and हम burning. जिंदा होकर सिर्फ जलते रहेंगे और If जलते you रहेंगे। dead, no problem. अगर आप मर भी जाओ चलो कोई बात नहीं ना, जल जल के मर गए। 1 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए पेन कर दिया मर गया तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है. पर बाइबल बताती है ऐसा नहीं है। Hell you will be alive and burning. नरक में हम अनंत काल तक जलते ही रहेंगे। Those people who are dead जो मर चुके हैं also going to rise again वो भी जिंदा होंगे when Jesus Christ जब comes. यीशु आएगा दोबारा। The people who are dead with believe in Jesus Christ, जो लोग यीशु में विश्वास रखकर मरे हैं they will arise वो भी जिंदा होंगे to reign with Jesus और भी Christ. यीशु के साथ रहेंगे। People who are not believe they die. लेकिन जिन लोगों ने विश्वास नहीं किया They are वो also मर going to गए, rise again. वो भी जिंदा तो होंगे They will fall hell. लेकिन जाएंगे नरक में। Bible says in Revelation, बाइबल बताती है प्रकाशित वाक्य में everyone will rise again. हर कोई एक बार जिंदा होगा ही होगा मरने के बाद भी। That day will be set day people who are not believing in Christ. और जिन लोगों ने यीशु में विश्वास अपने जीवन काल में नहीं किया उनके लिए वो बहुत दुखी दिन होगा। Why we should rise again? क्यों हम दोबारा जिंदा होंगे? Because God has given us the power, authority. He conquered the death. That is why we all will rise क्योंकि again. यीशु मसीह ने मृत्यु पर जय पाई और वो भी जिंदा हुए तो हमें भी वो जिंदा करेंगे। That is why today I want to talk about my topic is the power of resurrection. तो आज हम बात कर रहे हैं पुनरुत्थान के सामर्थ्य की। Because of Jesus Christ has risen by His power, He rose again. यीशु मसीह परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा जिंदा हुए। By His power, उनके सामर्थ्य not से, any other power. किसी और के सामर्थ्य से नहीं। Jesus rose यीशु मसीह by the जिंदा हुए। power of Jesus Christ. यीशु मसीह अपने सामर्थ्य से That जिंदा is why हुए। today by the power of resurrection, इसलिए पुनरुत्थान के सामर्थ्य से today we alive. आज हम जिंदा हैं And today we call the salvation. और आज हमें उद्धार मिलता है। So that is again my first point. तो आज Jesus has given us the power. यीशु मसीह ने हमें सामर्थ्य दिया है। What power? क्या सामर्थ्य The दिया है? resurrection power. सामर्थ
पुनरुत्थान का सामर्थ्य। The power is that God has overcome the Satan, the sin. यीशु मसीह ने पापों के ऊपर जय पाई है। Only God can forgive your sins. सिर्फ परमेश्वर ही आपके पापों को माफ कर No सकता one. है। कोई और माफ नहीं कर Even me, सकता। I cannot forgive your sins. पास्टर भी आपके पापों को माफ नहीं कर सकता। Satan has no power to forgive your sins. शैतान तो कभी आपके पापों को माफ नहीं करेगा। Only God has a power to सिर्फ forgive your परमेश्वर sins के पास ही सामर्थ्य है आपके पापों को माफ करने का, because of His resurrection. क्योंकि वो भी जिंदा हुए। So now, whoever believes in Jesus तो Christ, जो भी यीशु में विश्वास you करेगा, are no more sin. अब आप पापों में नहीं रहोगे। Now, the 1 Corinthians chapter 5 verse 17. पहला कुरिन्थियों का 5:17 में क्या लिखा है? Therefore, anyone who believes in Christ, कि जो भी यीशु मसीह में विश्वास करेगा, they become a new वो creation. एक नई सृष्टि हो जाएगा। When you believe in Jesus जब Christ, यीशु मसीह विश्वास करते हो, your sins are colored like a red. आपके पाप तो सच में कितने गंदे और घिनौने लाल होंगे। Isaiah chapter 1 verse 18. यशायाह 1:18 में क्या लिखा है? The Bible says, "Come, let us reason बाइबल together." कहती है, परमेश्वर कह रहा है, आओ ना बात करते हैं। Your sins are like a scarlet like a red. हाँ, तुम्हारे पाप इतने खून की तरह लाल और मेहरून है। How? कैसे? Murder, हमने rape, गुस्सा किया, idol, मूर्ति पूजा किया, sexual immorality, व्यभिचार किया, adultery, झूठ बोला, चुगलियाँ addiction, करी, गुस्से करे, all kinds of sins हर तरह का पाप you have committed, हमने पाप किया। like red. जैसे कारपेट एकदम लाल है, But God says, तो परमेश्वर ने if क्या you बोला? believe in me, अगर तुम मुझ में विश्वास I have the करते हो, power मेरे पास सामर्थ्य है to forgive your कि sin, तुम्हारे पापों को and माफ I करूं। will make you whiter as a snow. और मैं तुम्हें हिम के समान, बर्फ के समान सफेद कर दूंगा। So God, because of resurrection, तो पुनरुत्थान की God वजह has से the power to forgive your sin. परमेश्वर के पास सामर्थ्य है आपके पापों को माफ So करने। now when you believe in तो Jesus, जब आप यीशु मसीह you में are विश्वास करते no हो, more sinner. अब आप पापी नहीं कहलाते हो। Sometimes people say, "Oh, pastor, I'm committing so much sin. God also not forgiving." कई बार पास्टर के पास लोग आते हैं, कहते हैं, पास्टर जी हमारे पाप सच में इतने गंदे हैं, कोई परमेश्वर मुझे माफ नहीं कर सकता। No, नहीं, if you believe, अगर आप विश्वास करो, God has already forgiven. परमेश्वर माफ करता है। Don't be regret तो आप रिग्रेट ना करें the past life. पुराने जीवन में क्या Don't हुआ, live in the past life what you have committed. जो अतीत में किया उसको लेकर ना घूमे। You have believed in Jesus. आपने यीशु में विश्वास Now you किया, are spiritual. You become a new आप person. आत्मिक रूप से नए हो गए हैं, Now you become a new life. आपका एक नया जीवन हो गया है। Once God forgive your sin, परमेश्वर के पापों को माफ कर दिया, never think again. अब दोबारा उसको याद ना You करें, just leave it. छोड़ दे। God say, and don't committing again. परमेश्वर ने कहा पाप अब छोड़ दिया तो दोबारा मत करना। So when once you committing sin, अगर आपने एक बार पाप कर दिया, ask God, प्रभु से बोले then never return again. कि दोबारा वापस ना Then आए, your life continue तो ही आपका जीवन आगे चलेगा, in the moving forward. आगे बढ़ेगा। So when God wash away your sin, जब परमेश्वर के पापों को when माफ God करे, forgive your sin, परमेश्वर के पापों को माफ sometimes करे, we forgive people. कई बार हम लोगों को माफ तो करते हैं, Time to time हम लोग का दिमाग में आता फिर है दोबारा आता है कि उसने वो गलती और करी, गुस्सा करते हैं, गुस्सा भी आता है and we could not forgive. और हम माफ नहीं कर पाते। But God is not like that. पर परमेश्वर ऐसा नहीं है। God said, once I forgive you, परमेश्वर कहते हैं एक बार मैंने माफ कर He दिया ना, forgive forever. हमेशा के लिए माफ कर दिया। Never ever think back again what kind of sin that you have committed. दोबारा उस चीज के बारे में ना सोचे कि आपने अतीत में क्या पाप किया। When God wash away, जब परमेश्वर साफ करता है, completely wash तो away, पूरी तरह से साफ करता है, never come back. थोड़ी थोड़ी नहीं करता। So now God is forgiving your sin. परमेश्वर ने आपके पापों को माफ किया। Whoever believe. अब जो भी विश्वास करेगा, So you are not under the bondage of sin. अब आप पाप के बंधन में नहीं फंसे हो। Satan was making us under the slave of sin. शैतान तो हमें पाप में फंसा के रखना चाहता है, But because Jesus come and लेकिन died, यीशु मसीह क्योंकि आए He और rose मरे again. और जिंदा भी हुए, now God took away your sins. अब परमेश्वर ने आपके पापों को ले लिया। Now you are no more under the slave of Satan. अब आप शैतान के दास नहीं हो, Now you are no more under the slave of sin. अब आप पाप के नौकर नहीं हो, You are free. आप मुक्त हो। Everyone say, I am free. हर कोई बोले मैं मुक्त हूँ, I am no longer sin. अब मैं पापी नहीं हूँ, God has already forgiven my sin. यीशु ने मुझे माफ कर दिया है। Amen. आमीन। So now you are not sinner. अब आप पापी नहीं हैं, You are a new person. अब एक नई सृष्टि You are है, a new नए creation. लोग हैं। Amen. आमीन। And another one could be by the resurrection power. यीशु मसीह के सामर्थ्य से, And that one the Bible says in the Romans chapter 4 verse 25. रोमियो के 4:25 He में has लिखा took है away all your sins. कि उसने आपके सारे पापों He को has ले लिया, sacrificed माँ बलिदान दे दिया for our sin हमारे पापों के लिए, so that we may be saved. ताकि हम जिंदा हो पाए। So Jesus sacrificed his life on the cross. यीशु मसीह ने क्रूस पे अपनी जान दे दी, He was sacrificed for you. बलिदान दे दिया, That's why now you are no longer sin. और इसलिए ही आप पापी नहीं हो। Amen. आमीन। And another one now, the power of resurrection. यीशु मसीह के पुनरुत्थान का He has सामर्थ्य, already conquered the death. उन्होंने मृत्यु पर जय पाई है। And then also now because of Jesus Christ's
will rise up और again. क्योंकि यीशु मसीह जिंदा हुए, Now you become the agents of Jesus Christ. और अब आप यीशु मसीह की काम करने वाले चेले बन गए, Agents, you know. उनके एजेंट बन गए। There is a prime minister. जैसे प्राइम मिनिस्टर होता है, They have so many agents. जैसे प्रधानमंत्री के बहुत सारे एजेंट होते Prime हैं। minister sitting in the house, प्रधानमंत्री तो बैठा होता है, sitting in the office. ऑफिस में बैठा होता है, Who is working? काम कौन करता है? All the agents, प्रधानमंत्री थोड़ी करता है, एजेंट करते हैं, all his servants, all his people. उसके लोग करते हैं काम। So now Jesus said, by the power of resurrection, ऐसे ही यीशु मसीह पुनरुत्थान के सामर्थ्य से now you become the sons and daughter of God. अब आप परमेश्वर के बेटा और बेटी तो बन गए, And now you become the agents of God. आप उनके एजेंट भी बन गए। That is why people go into the world. जैसे परमेश्वर के जाओ दुनिया में, Jesus said, you believe in Jesus. यीशु ने कि तुम मुझ में विश्वास करते हो, Sit down तो बैठो। and aradhana karo. Sit down and eat and sleep. और No. आप यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तुम मुझे विश्वास करके बैठ के खाओ पियो और सो जाओ, No. नहीं। When you accept the Jesus जब Christ, यीशु मसीह को अपनाओ, what God has done in your life, यीशु मसीह ने क्या किया है? God is delivering you. आपको छुटकारा दिया God है, has forgiven your sin. आपको चंगाई मिली है, God has given you victory. आपको सफलता मिली God has है, given you life. यीशु मसीह ने आपको जीवन दिया That's है। good news. तो अच्छी बात, God has took away Satan in your परमेश्वर ने life. आपके जीवन से शैतान को निकाल दिया, God has given life. आपको जीवन दिया, God has given food. आपको खाना God has दिया, given salvation. आपको उद्धार दिया, God has given eternal life. आपको अनंत जीवन दिया। Jesus said, go into the world. अब यीशु ने कहा कि दुनिया में जाओ, Tell to the people दुनिया को भी तो बताओ that Jesus is कि alive. यीशु जिंदा है, Believe in Jesus. विश्वास So करो, they will not go to hell. ताकि वो लोग तो नरक ना Go जाए। and tell them जाओ उन्हें बताओ, so that they may be saved. ताकि वो बच जाए। God doesn't want even one soul to go to hell. परमेश्वर ये नहीं चाहते कि एक भी आत्मा नरक चली जाए। God desires that everyone will go to heaven. परमेश्वर चाहते कि हर एक व्यक्ति स्वर्ग ही आए। How India receives Bible? अब भारत के अंदर बाइबल कैसे पहुंची? Jesus died and he rose again. यीशु मसीह तो He मर told to गया। the 11 disciples, उनके जो 11 चेले बचे go थे, into the whole world, उन्होंने बोला पूरी दुनिया में जाओ, preach the gospel. सुसमाचार बांटो। India, how we receive तो gospel? भारत में बाइबल कैसे आया? One of the disciples यीशु मसीह 11 चेलों में come से to एक, India उसका नाम, वो भारत में आया in 1852. 52 AD में, Thomas, उसका नाम था थोमा। he come, वो भारत he में आया, preached the gospel. सुसमाचार He बांटा, preached the gospel. सुसमाचार That is लाया, why we have a gospel today. और इसलिए तो आज हमारे पास बाइबल है। He come to the South India, वो साउथ इंडिया में, दक्षिण and भारत when में he आया, come and preach the gospel, सुसमाचार बांटा। the Hindu people, तो हिंदू the लोगों ने, Muslim people, जो मुस्लिम लोग थे, they don't want to listen, जो सुनना नहीं चाह रहे थे, and they killed the Saint उसको Thomas. मार दिया, Saint Thomas was dead, और थोमा मर गया। but the gospel that he preached और लेकिन जो सुसमाचार उसने बांटा, never dead, वो नहीं मरा, never died. कभी नहीं मरा। Saint Thomas died. जब थोमा था वो तो मरा, Jesus never died. लेकिन यीशु तो नहीं मरा। He come and give Jesus Christ to India. तो थोमा ने आकर यीशु मसीह भारत को दे दिया, That is why Jesus is moving India. और इसीलिए यीशु मसीह भारत में भी No घूमता है। people believe in Jesus. जो भी विश्वास The करता है, gospel were preaching were everywhere. सुसमाचार सब जगह गया। They thought that when Thomas was killed, लोगों को लगा जब थोमा मर जाएगा ना, no Christian, कोई मसीहत नहीं No होगी, Bible. कोई बाइबल नहीं but होगी। Thomas come and preach the gospel to India. लेकिन थोमा ने जब भारत में आकर सुसमाचार बांटा, Thomas was killed. वो मर गया। The person who received Bible, लेकिन जिसने बाइबल को ले the लिया, person who received Jesus, जिसने वचन लेके यीशु को पा लिया, they are telling about another one after another. अब उन्होंने एक एक करके लोगों को बताना शुरू कर दिया। That's why today you receiving और आज Jesus. आप लेके दिल्ली में बैठ के आपके पास सुसमाचार है। See how that gospel come to your life. कैसे सुसमाचार आपके भी जीवन में, How you reach to this place. कैसे आप इस जगह तक पहुंचे। They told Satan thought that when they kill you, शैतान को लगा कि आपको मार देगा ना, you are finished. आप खत्म। Satan can kill your flesh. शैतान आपकी शरीर को But देह को मार Satan सकता cannot kill है, your spirit. पर शैतान आपकी आत्मा को नहीं मार सकता। And our body is alive because of your spirit. आपका शरीर क्यों जिंदा है? क्योंकि उसके अंदर जो आत्मा है वो जिंदा है। When your spirit departed, जिस समय आपकी आत्मा इस शरीर से निकल then गई, people say this person is सब died. लोग कहते हैं मर गया, But our spirit never पर died. आत्मा कभी नहीं मरती। When you are sleeping, जब आप सोते हो, your spirit never sleep. आपकी आत्मा नहीं सोती। For God, our spirit is important. परमेश्वर के लिए हमारी आत्मा बहुत महत्वपूर्ण God है। want to save that spirit. परमेश्वर शरीर को नहीं, आत्मा को बचाना चाहते हैं। That spirit, Satan want you to burn in और fire. शैतान भी इसी आत्मा को चाहता है कि हम नरक लेके चले जाएं। So now, when we are believing, when you are alive, तो जब आप जिंदा हैं, we need to believe in तो Jesus. हमें यीशु विश्वास To करना save है, your soul. ताकि अपनी आत्मा को बचा पाएं। When you die, जब मरेंगे, you cannot save your soul. आप अपनी आत्मा को नहीं बचा That is why पाएंगे। Jesus said, go into the world. इसलिए यीशु ने कहा कि दुनिया में जाओ। So when you preach the gospel, जब सुसमाचार बांटते God हो, is alive. परमेश्वर
काम करता है। So now God said, because of resurrection, now you become my minister, my servant, my pastor, my believer. तो परमेश्वर ने यीशु मसीह ने बोला कि मैं जिंदा हो गया हूँ और इसलिए अब मैंने तुम्हें चुना है और तब तुम मेरे चेले और तुम मेरा काम करोगे। So by the power of resurrection, तो यीशु मसीह के पुनरुत्थान की शक्ति we के द्वारा become the sons and daughters of हम God. यीशु मसीह के बेटा और बेटी बन We जाते हैं। become the servants of God. हम यीशु मसीह के दास बन जाते हैं। If He is not resurrected, और यीशु मसीह जिंदा नहीं होते today there is no gospel. तो सुसमाचार कैसे होता? Today there is no Christian. कोई मसीहत नहीं होती। But Jesus is not dead लेकिन anymore. यीशु मसीह मरा हुआ नहीं We are है। not worshiping the dead God. हम मरे हुए परमेश्वर की आराधना नहीं करते We are हैं। worshiping the living हम God. जिंदा परमेश्वर की आराधना करते हैं। Amen. आमीन। And then also by the resurrection of God's power, और यीशु मसीह के सामर्थ्य से, पुनरुत्थान के सामर्थ्य what से the Bible says, बाइबल क्या बताती है? we are conformed to the, we become a new person. कि हम नए हो जाते हैं। And then now in the 2 Corinthians chapter 3 verse 18. दूसरा कुरिन्थियों 3 के 18 में 2 Corinthians chapter 3 verse 18. दूसरा कुरिन्थियों 3 The 18 Bible says, बाइबल बताती है now because of Jesus Christ, यीशु मसीह की वजह से now when you believe in Jesus जब Christ, यीशु विश्वास my करोगे, body may be old. हाँ मेरा शरीर एक दिन बुढ़ा I होगा, may be 50, 60 years. एक दिन मैं 50-60 I साल may की be हो जाऊंगी, 100 years. एक दिन तो 100 I साल may की be हो 1 year. सकता है। But when you believe in Jesus, लेकिन जब यीशु विश्वास करोगे, now you become a new person आप हमेशा नए रहोगे in spiritually. आत्मा में। Now you become a new life. आप एक नया जीवन पाओगे। Amen. आमीन। Because of His resurrections. परमेश्वर के पुनरुत्थान की वजह से So He gave us a new person. उन्होंने हमें नया बना दिया, He made us a new person. हमें एक नया इंसान बना दिया। See, when you are not believing Jesus, जब यीशु विश्वास नहीं करते हो ना, our mind full of negative. आप देखो हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, No peace, no joy. शांति नहीं होती, Frustration, हमेशा फ्रस्ट्रेशन होती है, hatred, नफरत होती है, जलन होती है, jealousy. गुस्सा You होता have है, a house. आपके You घर have a में money. पैसा भी You होता have है, a job. नौकरी भी You have होती a है, children. बच्चे भी होते But हैं, if we didn't believe in पर Jesus, यीशु नहीं होता है ना, no peace. शांति नहीं होती। That Jesus said, I am the Prince of कि Peace. यीशु मसीह ने बोला मैं शांति का राजा हूँ। Only peace comes from God. शांति सिर्फ यीशु से आती है। Trouble, pain, difficulties, no peace, no joy come from Satan. और मुश्किलें, परेशानियां, चिंताएं ये सब शैतान से आती है। Satan doesn't give peace. शैतान कभी शांति नहीं देता। Satan always give you restless, शैतान हमेशा आपको परेशान रखेगा, frustration, हमेशा परेशान रहेंगे। and Satan never allow you to sleep peacefully. शैतान कभी आपको अच्छे से सोने तक नहीं देगा, Never allow you to do job nicely. अच्छे से काम नहीं करने देगा, Never allow you to eat food properly. अच्छे से खाना नहीं खाने देगा। When you have a job God giving you, जब परमेश्वर ने आपको नौकरी दी, Satan will trouble your job. शैतान आपको परेशान Your करेगा। boss, people who work together in the office, complain this and that. जो बॉस है, जो कलीग्स है, साथ में सबको परेशान करते When हैं। you have a good family, जब अच्छा परिवार होता Satan है, will come, शैतान आएगा, fighting, anger, misunderstanding, मिसअंडरस्टैंडिंग करवाएगा, and hatred one another, brother, परिवार में sister, रहकर mother, father. परिवार में रह के माता No peace. पिता भाई बहनों में लड़ाइयाँ That होंगी। is how the Satan works. शैतान ऐसा करता है। But when Jesus comes, लेकिन जब यीशु आता है, He changes our वो life. हमारे जीवन को बदलता है, He changes our heart. हमारे दिल को बदलता है। Even though you didn't have money, पैसा नहीं भी होगा you ना, have sleeping फिर peacefully. मस्त नींद आएगी, God will help you. फिर परमेश्वर हमारी मदद Even though you करेगा। have sick, अगर आप बीमार भी होंगे you ना, have peace. फिर भी शांति होगी, God will heal my sickness. परमेश्वर ठीक कर ही देगा। We have a hope. उम्मीद होती है हमारे पास। So when we have Jesus, जब यीशु होता है, our life settled. तो हमारा जीवन बहुत सेटल होता है। Anything happen, कुछ भी हो जाए, हम सब प्रभु के पास डालते हैं, प्रभु देखेंगे तो हमको आराम मिलते हैं। लेकिन हम लोग लाइफ में प्रभु नहीं है, क्या होता है, हम अपना शक्ति से, अपना ज्ञान से हम उनका सॉल्यूशन के लिए ढूंढते हैं, इधर उधर भटकते हैं। Because when you have in God, you are trying to solve your problem your own. क्योंकि जब आपके जीवन में यीशु नहीं है ना, परमेश्वर नहीं है, तो आप खुद ही अपनी परेशानियों का हल ढूंढते हैं। Then you are frustrated. और फिर परेशान होते हैं, You go here and there. हम इधर उधर भागते तो हैं, No find solution. कुछ मिलता ही नहीं। The last, और अंत में क्या होता you है, come back to Jesus. फिर कहते हैं यीशु कुछ आप ही कर दो, And then now you surrender. हम समर्पण कर देते हैं। That is how our life is. और फिर भी हम जिंदा हैं। Only God can give you सिर्फ solution. परमेश्वर ही आपको हल दे सकता Only है। God can solve your problem. परमेश्वर ही की परेशानियों का हल Only दे God सकता है। can help your life. सिर्फ परमेश्वर ही के जीवन को No बचा man. सकता है। कोई आदमी नहीं, No कोई myself. औरत नहीं, कोई भी नहीं, No minister. कोई दवाई नहीं, कोई Only मिनिस्टर God. नहीं, सिर्फ परमेश्वर। Amen. आमीन। Because our God is क्योंकि alive. हमारा परमेश्वर जिंदा And है। by the resurrection of Jesus और Christ, यीशु मसीह के जिंदा होने के द्वारा now God is giving us the power to raise the dead. परमेश्वर ने हमें ये भी सामर्थ्य दिया है कि हम मरे हुओं को जिंदा कर दें। God is giving us the power to cast out demons. परमेश्वर ने ये सामर्थ्य दिया है कि शैतान की आत्माओं को हम लोग निकाल दें। That is why see Jesus is rose again. इसीलिए आप देखिए यीशु मसीह जिंदा हुआ। That is why today many people healing
विश्वास करते हैं, वो चंगाइयां करते हैं, बुरी आत्माओं को लोगों के जीवनों से निकालते हैं, मरे हुए को जिंदा कर देते हैं। It shows that Jesus is alive. इसका मतलब यीशु मसीह उनके द्वारा कार्य कर रहा है। Even Jesus said, यीशु जिंदा है। before you go to heaven, यीशु ने जाने से पहले क्या कहा? you will do greater things that I am not. जो मैंने किया ना उससे ज्यादा काम तुम लोग करोगे। So today you see many people through prayer, witchcraft are dying, sickness are gone because Jesus is walking. और with you. इसलिए आज आप देखो लोगों की प्रार्थना में लोग प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से, तो बीमारियां निकल जाती, परेशानियां निकलती, बुरी आत्माएं निकल जाती है। Amen. आमीन। Please everyone don't run here and there. इधर उधर ना भागे प्लीज, सब लोग एक साथ बैठे। So everyone sit after the preaching. You can go to the toilet and प्रचार के washroom. बाद आप लोग Yes. वॉशरूम जा सकते हैं, तब तक प्लीज बैठ जाए। So now how Jesus is did? तो यीशु ने क्या किया? In Mark 16, मरकुस 16 में, 15. 15 में I have given all the power and authority. परमेश्वर कहते हैं मैंने तुम्हें सारा, Those who believe in my name, जो भी मेरे नाम में विश्वास करे baptize, उसे बपतिस्मा and sign and wonder will follow और me. फिर देखोगे उसके जीवन से क्या चमत्कार होंगे। See, God is giving us a commandment, परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है, power, authority. सामर्थ्य दिया है। That is why whenever you say in the name of और Jesus, इसलिए जब आप अपने मुंह से बोलते हो ना कि यीशु मसीह के नाम में, when they hear the name of Jesus, और जब बुरी आत्मा यीशु मसीह का नाम सुनती है, sickness listening, बीमारी भी सुनती है, witchcraft listening, तंत्र मंत्र सुनता है, idol listening, मूर्तियां भी सुनती है, your problem listening, आपकी परेशानियां सुनती है, your struggle listening. आपकी मुश्किलें सुनती है। When we say Jesus, जब हम कहते हैं यीशु, and they become attention, और वो कहते हैं अरे किसका नाम ले दिया, whatever in your life, जो भी आपकी लाइफ में then हो, we say in the name of Jesus, come out. हम बोलेंगे यीशु मसीह के नाम में निकल जा मेरी लाइफ They से, need to obey. तो उनको मानना ही पड़ता है। That's why they go out. और इसलिए परेशानियां निकल That's why जाती हैं, we cast out the demons. और इसलिए हम बुरी शक्तियों को We cast निकालते out the हैं, sickness. इसलिए आत्माओं को निकालते हैं। Jesus said in the Bible says in the Philippians chapter 2 verse 9 to 11. परमेश्वर का वचन कहते हैं फिलिपियों 2 के 9 से 11 में In the name of Jesus कि Christ, यीशु मसीह के नाम में every knee will bow down, उसके सामने हर घुटना टेक every जाता tongue will है, हर confess. जबान अंगीकार कर लेती है। So now when we use the name of जब Jesus, हम यीशु मसीह के नाम का इस्तेमाल करते if हैं, you use any other आप name, किसी और का नाम इस्तेमाल करके देखो, you use my name, पास्टर का नाम ले लो, you use other name, किसी और का नाम ले you लो, say no, that's pastor का my नाम से सैतान निकल जाओ, नहीं निकलेंगे, हाथ देंगे, कुछ नहीं होगा. And then also you use the many God other name, अल्लाह का नाम से निकल जाओ. क्या बात कर रहे हैं, मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, सैतान से बोलेगा. And you use the God and goddesses. आप जब किसी का भी, किसी भगवान की, देवी देवता, पास्टर का, किसी इंसान का, किसी का भी नाम ले, लेकिन दुष्ट आत्मा कभी आपकी बात नहीं सुनने वाली। But when we use the name of लेकिन Jesus, जब यीशु मसीह का नाम लोगे ना, all the living things तो सारी चीजें flying in the ears, हवा से निकल जाए, fly, walk in the sky, चाहे वो हवा में हो चाहे धरती में हो, walk in the heart. चाहे धरती के अंदर। Yes, sky they will not walk. So you see, they listen to the voice of तो God वो सारी चीजें आवाजें सुनती हैं आप जो आप बोलते हो, and they give attention. वो कि अरे यीशु का नाम से मांग रही है क्या, They scare the name of और वो Jesus. घबरा जाते हैं यीशु का नाम सुन के। There is a God said by the resurrection power, इसलिए परमेश्वर के पुनरुत्थान की you will वजह raise से the dead, तुम भी मरों को जिंदा करोगे, you cast out the demons, तुम शैतानी आत्मा you को will heal निकालोगे, the sickness, तुम बीमारियों को निकालोगे, you destroy the work of the Satan. शैतान के कार्यों को नष्ट करोगे। God has given all the people who believe in Jesus. परमेश्वर ने जो लोगों ने विश्वास किया उनको ये सामर्थ्य अधिकार Not दिया only है। me, पास्टर को ही नहीं दिया, सिर्फ everyone. आप में से हर किसी को दिया है। Bible says, बाइबल बताती है whoever believe in my name. कि जो भी मेरे नाम में विश्वास करेगा, So don't depend only me. सिर्फ ये ना सोचे पास्टर ही Depend करते on हैं, Jesus. यीशु में विश्वास Any करें, problem कोई come, भी प्रॉब्लम आए ना, just say Jesus, आप बोलो यीशु come and help. मेरी मदद करो, Suddenly you will get a आप solution. देखोगे सोल्यूशन मिल जाए, Suddenly you will heal. अचानक चंगाई भी आ जाएगी। Use the name. यीशु के नाम का इस्तेमाल करके देखो। When you have bad dream, जब बुरा सपना आता है, wake up and use the name and go away. सुबह उठो, जब भी आप बुरा When you सपना have आता है, sickness, तो उस नाम को यीशु के नाम से कैंसिल करो। use the name. जब In the परेशान name of Jesus, my sickness go अगर away. आपकी बीमारी है तो बोलो यीशु के नाम से बीमारी निकल जाए। When you didn't have money, जब पैसा नहीं in होना, the name of Jesus, आप बोलो यीशु के नाम money से problem go away. पैसे की परेशानी Job निकल जाए, problem go नौकरी away. की परेशानी निकल Family जाए, issue go फैमिली की away. परेशानी निकल जाए, Property issue go away. गरीबी की परेशानी निकल Brother, जाए, sister issue go भाई away. बहनों की परेशानी निकल Mother, जाए, father issue go मम्मी away. पापा की परेशानी You निकल जाए। use the name of आप Jesus. यीशु के नाम का इस्तेमाल करो, Every situation, किसी परिस्थिति you में will see the power of God. आप देखोगे परमेश्वर की ताकत। Jesus is alive. यीशु जिंदा है, That's why today many people see Jesus. और इसलिए आज बहुत सारे लोगों को यीशु से दिखता भी है। मालूम है? If Jesus is not dead, nobody will not see Jesus. अगर यीशु मसीह मर चुका होता तो किसी को क्यों दिखता? Jesus is alive.
सतीश भैया मेरे को बताया था, ओ मालूम है आपका गुरु मेरे पास आया है ना, बताओ सॉरी हाँ इधर स्टैंड करके हाँ तो सतीश भैया बताया था यीशु मसीह को नो ही सॉ जीसस, उन्होंने यीशु को देखा, he saw in this house इस घर में भी देखा, and he saw in his house, अपने घर में भी देखा। दो सतीश है, सतीश भैया बताया था before he was a Hindu, जब यीशु जब सतीश भैया उधर ना थे, he was sickness, he had no way, उनके पास कोई रास्ता नहीं था, बहुत बीमारी थी, परेशानी थी, he don't know church, उनको ये नहीं he पता, don't know Christian, उनको चर्च नहीं पता था, भैया क्रिश्चियन नहीं कितना पता, खड़े हो जाओ। he was you know he was there, he thought that today whole family was suicide, drink poison and death, इन्होंने सोच लिया था कि मैं जहर पीऊंगा, पूरे परिवार को जहर देके मारूंगा। he was planning, उन्होंने प्लानिंग he was lying, और लेटे हुए थे। that way of testimony को भाई कहता क्या हो यीशु मसीह आया था बताओ, बताओ जोर की बोल भैया। यीशु मसीह आए थे इनको उठाने के लिए, so Jesus said get up, उन्होंने कहा उठो, when pain came तो वो हाथ उठा के, so that day he was looking for church, तब उस दिन के बाद उन्होंने चर्च ढूंढा कि चर्च क्या होता है, मुझे चर्च जाना है। so that is how that he did it, और ऐसे ही Jesus is alive, यीशु there is so many people see Jesus और यीशु मसीह जिंदा है, इसलिए बहुत सारे लोग in यीशु prison, दृष्टांत in dream, दर्शनों में, सपनों में। there is a what is it? Your friend Ruchi. Ruchi in Haryana, I know her, she used to tell मेरी me, फ्रेंड है रुचि जो हरियाणा में रहती है, she used to tell me pastor I see Jesus, उसको इतनी बार यीशु मसीह नजर आए हैं, but so many people appear Jesus but they don't want to believe, बहुत सारे लोगों को यीशु मसीह दिखाई दे लेकिन फिर भी उनमें विश्वास नहीं करते। it's so ये दिखाता है Jesus is showing to people so many ways, यीशु मसीह अलग-अलग तरीकों से अपने आप को दिखा रहे हैं, it's so that ये दिखाता है that means Jesus is alive, यीशु मसीह जिंदा है, Jesus is not dead, यीशु मसीह मरा हुआ नहीं है, that's why he appeared to people, इसलिए तो लोगों को दिखता है। and when you read Jesus, when you read Bible, जब बाइबल पढ़ते हैं, some people didn't see Jesus, कई लोगों को यीशु मसीह शरीर में but नहीं when दिखता, they read Bible, लेकिन जब बाइबल पढ़ते हैं ना, their life changes, उनका जीवन बदल जाता है, they transform, उनका जीवन बदल जाता है, because Jesus is alive, यीशु मसीह वचन में भी जिंदा है। and some people they didn't see Jesus, कई लोगों को यीशु नहीं दिखता, they pray, तो प्रार्थना करते God हैं, listen their prayer, परमेश्वर की प्रार्थना को सुनता है answer their और prayer, जवाब दे देता है, because Jesus is क्योंकि alive, यीशु मसीह जिंदा है, he is not वो dead, मरा हुआ नहीं है, that's why Jesus is walking among इसलिए us, यीशु हमारे बीच में काम कर रहा है। so believe in that God, विश्वास करें उस परमेश्वर don't पर, doubt, शक ना करें, अब don't believe all the other necessary things, बेकार की चीजों में विश्वास करना don't छोड़ waste दें, your time, अपना टाइम ना खराब करें गलती Jesus में। is coming soon, यीशु मसीह जिंदा जल्दी वापस आ रहे हैं, and he is alive, वो जिंदा है that is why he wants to save your life, और इसलिए वो आपके जीवन को भी he wants बचाना to see your चाहता है, happiness, वो आपकी खुशी देखना चाहता when है। you cry, जब रोते हैं ना, God also cry, प्रभु भी रोता है, because you are the sons and क्योंकि आप उनके daughters, बेटा और उनकी बेटी है। when you have pain, जब आपको दर्द होता है he ना, also pain, उसको भी दर्द होता है, that is why you pray to God, he come and rescue your pain, इसलिए आप परमेश्वर से कहते हैं, परमेश्वर आओ मेरे दर्द को निकाल दो। because he love you, वो आपसे प्यार करता है, if he is not your God, if he didn't love you, अगर यीशु मसीह आपसे प्यार नहीं करता ना, he will say no, just let them go to hell, चल चलो ना नरक जाने दो, मुझे क्या फर्क he will पड़ता है? never listen to your prayer, आपकी प्रार्थना को क्यों सुन के जवाब देता, he will never come to you, क्यों आपके पास आता, but he love you, पर वो आपसे प्यार करता है, he don't want you to suffer, वो नहीं चाहता कि आप परेशानी he में don't रहें, want your sickness, वो नहीं चाहता आप बीमार रहो, he don't want your वो trouble, नहीं चाहता आप मुश्किलों में रहो, and he want you to be healed and delivered and powerful and anointed, वो चाहता है कि आप आनंदित रहो, चंगे रहो और छुटकारे में पाओ जीवन, because he is rose again, क्योंकि वो जिंदा हो गया, Jesus is rose again, यीशु मसीह जिंदा that's हो why we see so many things in our life, इसलिए अपने जीवन में रोजमर्रा में And कुछ he बदलाव listen to करते हैं। prayer. परमेश्वर हमारी he प्रार्थना को listen सुनता to है, our talk, हमारी बातों को भी सुनता है, he listen to our life, हमारे जीवन को भी he देखता है, looking into our life, वो देखता है अपने जीवन में क्या करते हैं, and whoever believe, और जो भी विश्वास करता है they have salvation, उद्धार मिलता है, they have eternal उसका life, अनंत जीवन they मिलता है, will never die वो again, कभी दोबारा नहीं मरता। so our God, तो हमारा परमेश्वर that you are worshiping, जिसके पर आराधना करें, that you believe, जिसको आप मानते हैं, he is alive, वो जिंदा है, that's why today we have the Easter Sunday, और इसलिए हम एस्टर संडे मना रहे हैं, because Jesus is not dead, कि यीशु मरा हुआ है ही नहीं, and he is rise again, वो जिंदा हो चुका why है, he rise again, क्यों जिंदा हुआ वो, to whom, for us, हमारे लिए, for you, आपके लिए, and when he died, और जब वो मरा, he took all your curse, all your sins, उसने आपके सारे श्रापों को, सारे पापों All को your ले लिया, problems. आपकी सारी परेशानियों को all ले your लिया, struggle, आपकी सारी मुश्किलों if को ले लिया। Jesus did
पढ़े कुरिन्थियों If 5 Jesus is not alive, अगर यीशु मसीह जिंदा नहीं my होगा preaching are in vain. तो मेरा प्रचार तो बेकार ही है, My words are in vain. मेरे शब्द सारे बेकार हैं। If Jesus is not alive. यीशु जिंदा नहीं है, But because of Jesus is alive, क्योंकि वो जिंदा my है, word become alive. मेरे शब्द भी जिंदा है, My preaching become मेरा alive. प्रचार भी जिंदा है, My prayer become मेरी answering. प्रार्थनाओं का भी जवाब आता है। That's why Jesus is alive. तो यीशु जिंदा है, Whatever you say, जो भी आप कहोगे it's working. वो कार्य करता है, Whenever you ask, जब भी आप मांगोगे is given. वो देगा, And He is always with you. वो आपके साथ हमेशा है। Jesus said in the Bible, यीशु मसीह ने कहा, I'll be with you till the ends of the age. मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा, ये यीशु ने कहा है। Amen. आमीन। Last part, Pana. In the Matthew of the 28th, मार्कुस, what Jesus said? मैथ्यू, Matthew of the 28th. मत्ती 28 में परमेश्वर ने कहा है, मत्ती 28 के 18, 19, 20 में, Yes, read that part. I'll be with you in all the days. That part. 20 तो यीशु मसीह ने कहा, जो बातें मैंने तुम्हें आज्ञा दी है उन्हें मानना सिखाओ बाकी लोगों को, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। Amen. God said to each one of us, परमेश्वर ने हम में से हर किसी से कहा है, everyone, हर किसी से, I'll be with you मैं आपके साथ हूँ till the end of your life. जगत के अंत तक, आपके जीवन के अंत तक, Generation to generation. आपकी पीढ़ियों से पीढ़ियों I तक। will not leave you. पास्टर परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, I will not forsake you. मैं कभी तुम्हें त्यागूंगा I will नहीं, not reject मैं you. कभी तुम्हें नकारूंगा But I नहीं, am always with you. पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। There is a God is always with you. इसलिए परमेश्वर हमेशा आपके साथ Nothing to है। be afraid. तो उसके बाद डरने की जरूरत नहीं Don't है। afraid sickness. तो बीमारियों से ना डरे, Don't afraid Satan. और शैतान से ना डरे, Don't afraid witchcraft, black magic. काले जादू और तंत्र मंत्र से ना डरे। Don't afraid all kinds of evil people try to kill you. कोई आपको मार के मारने की कोशिश भी करता है ना, उससे भी मत डरे, You have the powerful क्योंकि God. आपके पास जिंदा You have the mighty परमेश्वर है, God. महान परमेश्वर है। Believe in that God. विश्वास करें उस Walk परमेश्वर in में, that God. उसमें कार्य करें, Faith in that word. उसमें विश्वास करें, And He will rescue you. और वो आपको हर पाप से परेशानी से बचाएगा। Not only rescue you, सिर्फ बचाएगा ही He नहीं, will bless you पर abundantly. आशीष भी देगा। That is why in the last I will say, इसलिए पास्टर अंत में बोलना in चाहिए, Deuteronomy chapter 28, व्यवस्था विवरण के 28वें अध्याय में God said, if you obey my commandments, परमेश्वर ने कहा कि अगर तुम मेरी आज्ञाओं पर चलोगे, verse 1 to 14, 1 से 14 तक, you will be blessed in the city, तुम आशीषित होगे शहर में, you will be blessed in the country, तुम देश में आशीषित you will होगे, be blessed in the village, तुम गांव में आशीषित you होगे, are going out will be blessed, तुम्हारा बाहर जाना you आशीषित है, coming in will be blessed, तुम्हारा अंदर आना आशीषित है। if you obey, तो अगर तुम आज्ञा को मानोगे, if you believe in me. अगर तुम विश्वास करोगे, But if you didn't believe, पर अगर विश्वास नहीं if करोगे you ना, didn't obey, अगर आज्ञा नहीं all मानोगे, this blessing, तो ये सारे आशीष you will not get it. तुम्हें नहीं मिलेंगे। Satan will torment you. शैतान परेशान करेगा। God is blessing us. God never make it to be poor. परमेश्वर ने हमें आशीष दी, हमें गरीब बनाने के लिए नहीं दिया God है। never make it to be better. परमेश्वर नहीं चाहते कि आप भिखारी बन God जाए। never make it to be dominated by witchcraft. परमेश्वर नहीं चाहते कि आप काले जादू और तंत्र मंत्र फंसे रह जाएं। God never make it to be a pain, sorrow. परमेश्वर नहीं चाहते कि आप दुख में रह जाएं। Why we go through these things? क्यों हमारे जीवन में ये होता है? Because we didn't believe कि God. हम विश्वास नहीं We करते। are so stubborn. हम बहुत जिद्दी होते We हैं। are so disobedient. हम बात नहीं मानते हैं। We are not listening to हम God. परमेश्वर की सुनते कहाँ हैं? If God, even the people God healed, परमेश्वर ने अगर लोगों को ठीक भी कर दिया ना, इधर आके घुस के पास्ता पढ़ना करो, प्रभु आंसर देते हैं, पढ़ना करते हैं, ठीक होते हैं, घर में जाके अपना अपना खुशी काम करते हैं। See how, but still God love us. पर फिर भी परमेश्वर हमसे प्यार करता है। इतना हम लोग disobedient है, हम परमेश्वर की बात को नहीं मानते हैं। इतना हम लोग का सोच गंदा है, हम कितना गलत सोचते हैं। but still God love us. पर परमेश्वर फिर भी हमसे प्यार But करता if you obey God, है। लेकिन अगर आप परमेश्वर की आज्ञा पर चलोगे, how much we are going to bless? कितना हमें आशीष मिलेगा। हम प्रभु में बहुत वादा करते हैं, हम परमेश्वर मैं ऐसा प्रभु में आज के दिन से ऐसा नहीं करेगा, आज के दिन से नहीं पीड़ेंगे, आज के दिन से मैं गुस्सा नहीं करेंगे, आज के दिन से मैं तंत्रा मंत्रा करेंगे, आज के दिन से मैं झूठ नहीं बोलेंगे, आज के दिन से मैं रोज चर्च आएंगे, कुछ नहीं कर सकता। आज तक बताया, आफ्टर सेकेंड मिनट फिर वापस आया, फिर ड्रिंक कर दिया, फिर झूठ बोल दिया, फिर लड़ाई कर दिया, फिर माफ नहीं कर पाया। ये हम लोग का जिंदगी है ना? सही है गलत है? मैं भी हूँ। तो हमेशा होना नहीं चाहिए। That is why God say, if you obey, if you command my command, obey, परमेश्वर ने कहा कि अगर तुम मेरी आज्ञा को मानोगे, you will
तुम आशीषित होगे। Our God is the mighty God. हमारा परमेश्वर महान Our परमेश्वर है। God is powerful हमारा God. परमेश्वर Even though you are not obeying, अगर आप बात नहीं भी मानो, but still He loves you. फिर भी वो आपसे प्यार But करता है, still He bless you. फिर भी आपको आशीष देता But है, still He give you फिर life. भी आपको जीवन He दिया give you food. आपको खाना दिया हुआ है, Your body fit for. आपका शरीर भी ठीक है। See, even though we didn't believe, अगर आप विश्वास नहीं भी करते, इतना हम है ना प्रभु का अनदेखा करते हैं, डिनाई करते हैं, कितनी बार हम परमेश्वर को नकार देते हैं, but still He never deny you. फिर परमेश्वर आपको तो नहीं नकारता। We mock, we criticize. हम मजाक भी उड़ाते हैं, झूठ भी God बोलते will हैं, पर परमेश्वर नहीं करता। So if you believe even single things, अगर आप छोटी चीजें में विश्वास करते हो ना, Bible say no. If you believe in Jesus, it's just like a mustard seed. इसलिए परमेश्वर ने क्या बोला, अगर तुम राई के दाने के बराबर ही मुझ में विश्वास रख लोगे ना, So no, मैं आपको expect नहीं करता बड़ा विश्वास. परमेश्वर कहते हैं बड़े बड़े विश्वास तुमसे उम्मीद भी नहीं रखता हूँ। मैं मालूम है आप नहीं हो पाएंगे, लेकिन मस्तक से जैसा भी आप लेकिन विश्वास राई के करेंगे, दाने के बराबर भी अगर आप विश्वास कर लो ना, then प्रभु बताया you can move the mountain. परमेश्वर कहते हैं तुम बड़े बड़े पहाड़ों, बड़ी बड़ी मुश्किलों को हटा दोगे। आप ऐसा करेंगे mountain जाओ जाएंगे, आप इस the like a mustard seed also give you help. लेकिन सिर्फ राई के दाने के बराबर भी विश्वास परमेश्वर कहते हैं इससे भी हो जाएगा। God is demanding even small. परमेश्वर तो इतना ही मांग रहा है, But if you fix it, faith, then what will be? और सोचे अगर इतने से पहाड़ हिल जाएंगे तो बड़े विश्वास से तो क्या ही हो जाएगा। Then you become a great mind. तो आप बड़े महान बन So जाएंगे। believe in that. तो विश्वास करें, God is alive. परमेश्वर जिंदा है। We all let us stand together. आइए हम सब खड़े हो जाएं, We all let us pray. साथ में प्रार्थना Our करें। God is rise. हमारा परमेश्वर जिंदा हो गया है, He is here. वो यहाँ है, He is everywhere. वो सब जगह है, He is in your वो house. आपके घर में है, He is in you. वो आप में है। So don't think that God is प्रभु हम लोग no. Don't think that God didn't see, and don't think the pastor didn't see. Don't think that your family didn't see. In your secret thing, God see. परमेश्वर ऐसा ना सोचे कि अरे किसी ने मुझे नहीं देखा, कोई नहीं देख रहा पास्टर, लेकिन नहीं, परमेश्वर आपको अंधेरे में, अकेले में भी देखते हैं। Bible say when you are gone through deep in the ocean, अगर आप कब्र में भी चले जाएं, God say I am here. परमेश्वर कहता है मैं हूँ।